السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن بھر کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روس اور یوکرین کے درمیان بیلاروس کی سرحد پر ہونے والے مذاکرات کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ بٹمالو علاقے میں ملٹنٹ کا پولیس انسپکٹر پر حملہ، اینٹی کرپشن بیورو کے ایک پولیس انسپکٹر شیخ فردوس شدید زخمی۔ معراج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ حضرت بل میں آج بڑی تقریب کا ہوگا اہتمام۔ حیرت بڑی دھوم دھام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی، مندروں میں بھگوان شیو کی پوجا۔ بڑگام میں ضلع ترقیاتی دشا کی میٹنگ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی میٹنگ کی صدارت۔ محبوبہ مفتی کی بے باکی نے مجھے پی ڈی پی میں شامل ہونے پر مجبور کیا، کشمیری پنڈت نوجوان پی ڈی پی میں شامل۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر اور آئی جی پی کشمیر کا جامع مسجد کا دورہ، نماز جمعہ کے لیے دوبارہ کھولنے کے اقدامات کا لیا جائزہ۔ تنخواہوں کی واگزاری اور نوکریوں کی بحالی، برخاست ہیلپرز و سپروائزرز کا پریس کالونی میں احتجاج۔ لاکھوں روپے ٹیکس ادا کرنے کے باوجود انتظامیہ ہم پر روزانہ جرمانہ عائد کرتے ہیں، ٹپر ڈرائیورز کا سرکار پر الزام۔ ڈرینیج کے نام پر کالونی کھنڈرات میں تبدیل، کھدائی کر کے کام ادھورا چھوڑ دیا، مدہوش کالونی نوگام میں احتجاج۔ بجلی نہیں تو سمارٹ میٹر نہیں، نوگام علاقے کے مقامی لوگوں کا ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ جب سے میونسپل کارپوریشن نے ڈرینیج سسٹم کو اپنے تحویل میں لیا، تب سے یہ سسٹم بیکار ہو گیا، ریلوے کالونی کے باشندوں کا ایس ایم سی پر الزام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، روس اور یوکرین کے درمیان بیلاروس کی سرحد پر ہونے والے مذاکرات کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ روس اور یوکرین کے اعلیٰ سطح کے وفد کے مذاکرات کئی گھنٹے تک جاری رہے۔ ان مذاکرات میں کیا طے پایا ہے، اس حوالے سے فریقین نے عوام کو آگاہ نہیں کیا۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات دوبارہ تعطل کا شکار بھی ہوئے۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ آئندہ چند روز میں ہونے کی توقع ہے۔ خیال رہے کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر مختلف اطراف سے حملہ کیا تھا۔ روس کے حملے کے بعد سے اب تک یوکرین کے مختلف علاقوں میں جنگ جاری ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے ایک پولیس انسپکٹر کو ملٹنٹ نے کل شام سری نگر کے بٹمالو علاقے میں گولی مار کر زخمی کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عسکریت پسندوں نے انسپکٹر شیخ فردوس کو نزدیک سے گردن میں اس وقت گولی مار دی جب وہ شام کی نماز کے بعد مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ انسپکٹر شیخ فردوس احمد دوبی محلہ بٹمالو کا ہی رہنے والا ہے اور ملٹنٹ نے ان کو اپنے ہی محلے کی مسجد کے باہر حملہ کیا۔ مقامی لوگوں اور پولیس نے ان کو فوری طور ہسپتال پہنچا دیا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے ڈاکٹروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انسپکٹر شیخ فردوس کی حالت مستحکم ہے۔ وادی کشمیر سمیت پورے عالم اسلام میں معراج العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر 2 برسوں کے بعد سراج شریف چھوڑ کر پیر اور منگل کی درمیانی رات آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیگر بڑی درگاہوں میں شب خانی کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئی۔ آج یعنی منگل کو آثار شریف، درگاہ حضرت بل کے ساتھ ساتھ شہر سری نگر اور وادی بر کی مساجد و خانقاہوں میں عظیم الشان روح پرور اجتماعات اور بابرکت مجالس کا انعقاد ہوگا۔ وہی آج مہا شیوراتری یعنی حیرت بڑی دھوم دھام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہندو عقیدت مندوں کی اکثریت نے آج کے دن روزہ رکھنے کے ساتھ تہوار منایا اور مندروں میں بھگوان شیو کی پوجا کی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں نے مذہبی بھائی چارے کی روایت کو دہراتے ہوئے یہاں مقیم پنڈتوں کے گھر جا کر انہیں مبارکباد دی اور حیرت سلام پیش کی۔ جموں میں رہائش پذیر کشمیری مائیگرنٹ پنڈتوں نے بھی اپنے روایتی طور اس تہوار کو بطور حیرت منایا۔
डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने तारीखी जामे मस्जिद का दौरा किया, जिस दौरान आला अफसरान ने जामे मस्जिद के आलमीदीन और अंजुमन अवकाफ जामे मस्जिद के सेक्रेटरी से भी मीटिंग की। कहा जाता है कि इस दौरे का मकसद आने वाली जुमा को मस्जिद को नमाज जुमा के लिए दोबारा खोलने के इकदाम का जायजा लेना था। वाजह रहे कि मुसलसल 30 हफ्तों से तारीखी मस्जिद में जुमा की नमाज की अदायगी पर मुसलसल पाबंदी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बडगाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बडगाम में जिला तरक्याती राबता और निगरानी कमेटी दिशा की मीटिंग की सदारत की, ताकि जिले में मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। मीटिंग में चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल, बीडीसी चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल कमेटी के सदूर और जिला अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी और बिजली की बेहतर सहूलियत फराहम करने पर जोर दिया और तमाम जेर तकमील तरक्याती कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। मैंने वहाँ पे जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं उनको उभारा, बाकी जो डीडीसी मेंबर थे उनने भी उभारा, जो तकलीफ़ें हैं लोगों की वो बताई और हुकूमत ने कोशिश की उनका जवाब देने का, और ये कहा कि हम इन जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी पीने का मामला हो, हर चीज़ पे बहस की गई। अस्पतालों के बारे में कहा गया, अस्पतालों में कमी कहाँ पर है, अस्पतालों में किस तरह बढ़ावा करना पड़ेगा, मैटरनिटी अस्पताल बनाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आ गई। इसी तरह से नीलनाग है, उसके अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहते हैं कि उसको डेवलप कर सकें। फिर जो आपके दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल रहते हैं, उनके मसाइल को हल लाया गया सामने। इधर पीडीपी के मरकजी दफ्तर श्रीनगर में कल श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवानों ने पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के सामने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान भी शामिल थे। इस मौके पर एक नौजवान ने कहा कि जिस बेबाकी से महबूबा मुफ्ती कश्मीरी की तर्जमानी करती है, इस बेबाकी ने मुझे पीडीपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। महकमा समाजी बहबूद में सुपरवाइजरों के साथ साथ काम कर रहे हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स ने तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की बहाली के हक में पीर को एक मरतबा फिर श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन अपने मुतालबात के हक में जमकर नाराबाजी कर रही थी और वह अपने साथ रोटियां भी लाई थी। उन्होंने बताया कि वो गुज़श्ता 3 साल से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि हम मजबूर हैं। हमको कोर्ट ने हमको आर्डर निकाला, फिर हमने कोर्ट ने आर्डर दिया इनको तनख्वाह गुजार करो, इनको ड्यूटी पे बुलाओ। नहीं, वो 3 महीने हो गया वहाँ चक्कर लगे। हाँ दिया सर वो, लेकिन फारूक खान को हम अपील करते हैं, हम यहाँ पर रोटी लेके आए हैं, क्या कहाँ जाएंगे? फारूक साहब, एलजी साहब, हमारा मसला हल करो। हम क्या आपके बाप भाई बहन नहीं है? क्या माँ बाप नहीं है आपको? क्या बहन नहीं है? क्या आपके बहन ऐसे अगर आएंगे प्रोटेस्ट करने हुए रोटी लगा के, क्या आपको इंसाफ नहीं है? हमारा इंसाफ करो प्लीज फारूक खान, हमारा इंसाफ करो, हमारा मसला हल करो। इधर एक और एहतजाज में सैकड़ों रेत से वाबस्ता टिप्पर ड्राइवरों ने सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सालाना लाखों रुपया टैक्स अदा करने के बावजूद पुलिस और इंतजामिया हम पर रोजाना जुर्माना आयद करते हैं और हमें रेत लोड करने की इजाज़त नहीं देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 3 सालों से हमें मुख्तलिफ तरीकों से बिला वजह तंग किया जा रहा है और हमें मजदूरी करने से रोका जा रहा है। मदहोश कॉलोनी नवगाम श्रीनगर के बाशिंदों ने कानीपुरा ब्लॉक ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि उन्होंने बगैर एस्टिमेट मदहोश कॉलोनी में ड्रेनेज का काम शुरू किया और खुदाई करके काम को अधूरा छोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियां पैदा हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने लिंक रोड की खुदाई करके क्यों हमें परेशानी में डाल दिया है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि ये यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ से ड्रेन निकालनी शुरू कर दी। तो नियर अबाउट 1 वीक से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन ये जू की तू रखा उन्होंने। देखो ये गड्ढे किस तरह रखे हैं। ये उनको उनके पास जाके बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास इतने एस्टिमेट नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर उससे बोलते, वो बोलते जाओ एक्शन के पास जाओ, जेई को फोन कर रहे, वो ऑफिस में नहीं है। वो बोला मैं जम्मू में हूँ। हम करें तो क्या करें, किसके पास जाए?
बोले जाओ डीसी के पास जाओ, वो करेंगे, वो करो, जो करना है जो करो, हम कुछ नहीं करेंगे, एस्टिमेट इतना ही है। कर अख करियो ये वन बनाया ड्रेन अख वन सारी फेल सारे ड्रेन नलक तो यम टिट तो यह वनकस हेको वनकस गिल कर कहें तो वनकन पटे छनमत मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि ये इलाका पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि 2 साल कबल सरकार ने यहाँ पर एक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब कर रखा है और आज तक इसको काम में नहीं लाया गया। हद तो यह है कि बिजली की अदमी दस्तयाबी के बावजूद सरकार स्मार्ट मीटरों की तनसीब पर हमें मजबूर कर रही है, जो सरासर जुल्म है। वहीं रेलवे कॉलोनी नौगाम श्रीनगर के मकीनों ने सिविल इंतजामिया और एसएमसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हालिया बर्फबारी के बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और सारा गंदा पानी हमारे घरों में घुस गया है। उन्होंने म्युनिसिपल इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब तक इराक के जेर निगरानी ड्रेनेज सिस्टम था बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन जो ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको अपने तहवील में लिया है तब से ये ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो गया है और सारा पानी घरों में घुस जाता है। 24 तारीख से जब से बर्फबारी हो गई तब से कोई अफसर आला अपनी कुर्सी से उठता ही नहीं है। हमारी कंप्लेंट को नजरअंदाज कर दिया गया। श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी को हमने 131 कंप्लेंट करके कोई भी चारागोही नहीं हो रही है आज तक। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिमास करते हैं कि वो अपने जाग जाइए और हुकूमत का जो पैसा है को पूरा आप खर्च कीजिए, वरना वो डीजल के जगह अपने गाड़ियों में चलाते हैं और हम लोगों को मासूर करके रहे। बिजली के न होने की वजह से ये लोग हमारे को घरों में पानी घुसा रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारे घरों में पानी घुस चुका है। पिछले 5 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी के मुलाजिमीन सिर्फ यही हमें दावा करते कि भाई पावर नहीं है, डीजल नहीं है। ये कौन सा पानी? ड्रेनेज का पानी? ड्रेनेज का पानी है, हमें घरों में घुसा हुआ है। जबकि ये 2014 में बन चुकी थी। 8 साल इराक के अंडर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी ने टेक ओवर की है तब से ये मुसीबत है हम लोगों को। क्या दलील छ तोह कमुक आब छ तोह आमुत घरन मज? नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।